Good morning, students. I am Gunjan Kaur, your economics teacher. I hope that you all are doing well at your home. Today, we will be doing the second chapter of microeconomics, that is, central problems of an economy, and from there, we will be again revising the part of PPC. Now, what do you mean by PPC? That is production possibility curve. First, let us recall what are the four factors of production. What are the four factors of production? मतलब प्रोडक्शन करने के लिए किन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है. इन चारों चीज़ों को अगर हम मिलाते हैं तो हम कुछ भी प्रोडक्शन कर सकते हैं. These four things are land, labor, capital and entrepreneur, which is also pronounced as entrepreneur. देखिए ये चार चीज़ें हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. इन चारों को अगर हम मिक्स करेंगे या आपस से एक दूसरे के साथ सहायता से वी कैन प्रोड्यूस वॉट एवर वी वॉन्ट. So basically these four are the main ingredients of production. If you need to produce anything, you need these four factors of production. That is land, labor, capital and entrepreneur. अब production possibility curve में what do you mean by that production possibility curve? It is a combination of two goods which are produced in an economy with the help of given resources without any wastage. Okay, now given resources का मतलब क्या हुआ? That given resources are these four factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. इन चारों को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि वी आर ओनली प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स, दैट इज़ राइस एंड व्हीट, और वी कैन नेम देम एज गुड एक्स एंड गुड वाई. अगर आप इन दो चारों को मिक्स करेंगे तो हम एज्यूम कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग इट इन आवर कंट्री दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली टू टाइप्स ऑफ गुड्स, दैट इज़ राइस एंड व्हीट और गुड एक्स एंड गुड वाई. इन चारों चीज़ों की मदद से, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. एंड कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब इन चारों को इस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है कि कुछ रिसोर्सेज बच ही नहीं रहा है. द होल लैंड इज़ कवर्ड विथ ओनली दिस टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ राइस एंड व्हीट, दैट इज़ ओनली गुड एक्स एंड गुड वाई. Now when we are assuming that the PPC is based on only two types of production, only two goods are produced in that given economy, the second thing which we assume here is that the technology remains constant. मतलब जो टेक्नोलॉजी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, वो नाइदर ऑब्सोलेट है यानी पुरानी भी नहीं है, नाइदर नई इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी भी नहीं हो रही है. जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ कांस्टेंट. Okay, basically this PPC is based on these two types of assumptions. और आपको पहले ही मैंने बता दिया कि द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, देयर इज़ नो वेस्टेज इन हियर. ओके, नाउ does the points which lie on the PPC shows that there is full and efficient utilization of resources. मतलब जो पॉइंट्स PPC के ऊपर लाई कर रहे हैं उसका मतलब हो रहा है जो ABCDE पॉइंट्स हैं आपके नोट्स में अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, दैट शोज दैट द PPC, the points on the PPC shows that full and efficient utilization of resources. Understood? Now let us ask a question, that is, does PPC take place on the
पीपीसी ओनली, क्या प्रोडक्शन सिर्फ पीपीसी यानी उसी पॉइंट्स पे लाई करता है, दैट इज़ ABCDE, या वो कहीं और भी लाई कर सकता है? यस, जो पॉइंट्स हैं वो इनसाइड द पीपीसी भी लाई कर सकते हैं, सच एज G and H according to the given diagram which I will be providing you in the notes. अब G और H, what does that means? That means that there is inefficient utilization of resources. मतलब जो resources हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो full and efficiently utilization नहीं हुआ है, यानी जो land, अगर एक लैंड में हम राइस और वीट दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अभी तक उसमें थोड़ा सा प्लेस खाली है, उसमें या तो हम राइस या हम वीट कुछ भी और प्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट इज़ नोन एज पॉइंट G and H. दैट मीन्स इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Got it, students? Now, in the diagram, you will again see that there is a point lying outside the PPC, that is known as point I. Now, what does this point I means? That means unattainable point. The point unattainable means that we cannot reach that point as there is no resources available in our economy. कोई और resources है ही नहीं हमारे पास कि हम उस point तक पहुँचे, क्योंकि ऑलरेडी जो पॉइंट्स ABCDEF है उसमें सारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज्ड हो चुके हैं. ओके, नाउ द PPC जनरली is a graphical representation which shows what to produce, कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए हमें, either good X और good Y. और अगर हम दोनों प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कितने कितने क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड है. उतने ही रिसोर्सेज से यानी उसी लैंड में हमें दोनों गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि लैंड को तो हम इंक्रीज़ कर ही नहीं सकते, है ना. जितना लैंड हमारे पास है उतना ही है, अब उसको हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे? लैंड के नॉट बी इंक्रीज्ड, है ना. तो अर्थ में जितना लैंड है उसमें हम दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी इकोनॉमी में जितना लैंड है हम उसमें दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ गुड X एंड गुड Y. और अगर हम दोनों गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो हम हाफ हाफ कर सकते हैं उसको प्रोड्यूस करते वक्त, या अगर हमको हाफ हाफ सपोज़ हम कर रहे हैं और अगर हमको राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है उसी लैंड में, तो ऑब्वियसली ये नियम है कि वी हैव टू डिक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ wheat if we want to increase the production of rice in that particular land. तो this, अब जब हमें डिक्रीज़ करना है, ऑलरेडी दैट लैंड जो यूटिलाइजेशन कर रहे थे दैट इज़ फुल्ली एफिशिएंट फॉर वीट ओनली. नाउ अचानक से अब हम उसमें राइस को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो जब हम राइस को प्रोड्यूस करना चाहेंगे वीट के प्लेस में, तो ऑब्वियसली वो फर्टाइल लैंड था वीट के लिए वो सेम फर्टाइल नहीं हो सकता है राइस के लिए. तो the more sacrifice we have to do of wheat in order to produce small quantity of rice. मतलब अगर एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है राइस को तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वीट को. जितना ज़्यादा हम वीट को सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही एक एक यूनिट करके हम राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं. दिस इज़ नोन एज मार्जिनल opportunity cost. Now what do you mean by marginal opportunity cost? Marginal opportunity cost को हम slope of PPC भी कहते हैं. अगर PPC का slope को calculate करना है then we can only calculate it through marginal opportunity cost. That is, it is the ratio of number of units of goods sacrificed to produce an additional unit of another goods. जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आपको एक यूनिट राइस का एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना है तो आपको वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और जो वीट का सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो लैंड वीट के लिए फर्टाइल था. अब अचानक से आप उसमें राइस प्रोड्यूस करना चाहोगे तो वो फर्टिलाइज़ इतना नहीं होगा राइस के लिए, तो उसकी प्रोडक्शन कम होएगी और वीट की प्रोडक्शन
को डिक्रीज़ करके उसकी, अगर आप 10 यूनिट्स वीट्स को सेक्रीफाइस करेंगे तो आप सिर्फ एक ही यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे राइस का, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस। नाउ MOC का जो फॉर्मूला है that we can write as change in y upon change in x. Now change in का साइन आपके नोट्स में एक ट्राइंगल के थ्रू दिया हुआ है. दैट ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स चेंज इन साइन. ओके, ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? चेंज इन y, that is change in good x upon change in good y upon change in good x. This is known as MOC or MRT, that is marginal opportunity cost or marginal rate of transformation. अगर हम आपको इसका एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको राइस और वीट दे के समझाया है, फिर एक न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल भी मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है नोट्स में बहुत अच्छे से. उसमें मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको कि गुड एक्स कैसे, चेंज इन गुड एक्स और चेंज इन गुड वाई कैसे निकालना है. उन दोनों को निकालने के बाद ही आप MRT कैलकुलेट कर सकते हैं या MOC कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ जो हम PPC में क्या देखते हैं कि हमेशा MOC जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों होता है? क्योंकि नो रिसोर्स इज़ इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स. कोई भी रिसोर्सेज दोनों गुड्स के लिए इक्वल एंड एफिशिएंटली प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर सकता. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाया कि इफ़ द लैंड वाज यूटिलाइज्ड फॉर वीट, और अगर आपको उसमें अचानक से राइस प्रोड्यूस करना है तो वो उतना फर्टाइल नहीं होगा राइस के लिए जितना फर्टाइल वो वीट के लिए था. मतलब जब आप कुछ उसमें प्रोड्यूस करो, वीट का प्रोडक्शन उस लैंड में ज़्यादा हो रहा था क्योंकि वो ज़्यादा फर्टाइल था वीट के लिए, पर राइस का प्रोडक्शन उसमें कम होगा क्योंकि वो लेस फर्टाइल है राइस के लिए. अंडरस्टूड बच्चों? नाउ लेट्स गो टू इंक्रीजिंग MOC अगेन. इंक्रीजिंग MOC में आपको क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा यूनिट आपको X का प्रोड्यूस करना है उससे कई ज़्यादा यूनिट आपको Y का यानी वीट का रिड्यूस करना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन efficiently utilize your resources without any wastage. Okay, in PPC there will always be increasing MOC, but can PPC be a straight line? क्या PPC कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकता है? मैंने तो अभी आपको बोला कि PPC हमेशा कनकेव होता है, कभी भी कनकेव के अलावा कोई शेप नहीं हो सकता. पर यस, PPC स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हो सकता है. ये कब हो सकता है? व्हेन PPC कैन बी अ स्ट्रेट लाइन ओनली व्हेन MRT इज़ कांस्टेंट. मतलब MOC जब कांस्टेंट होगा तब PPC आपका स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा. ओके, अब ये कैसे होगा? अब ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अपने नोट्स में सॉल्व करके दिखाऊंगी जहाँ पर चेंज इन X और चेंज इन Y दोनों 1:1 रेशियो में आएगा. मतलब दोनों एक एक क्वांटिटी में ही. जैसे अगर एक यूनिट आपको राइस का बढ़ाना है तो एक ही यूनिट आपको वीट का रिड्यूस करना पड़ेगा. जब ऐसा होगा तब PPC एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फॉर्म करेगा. गॉट इट?